بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آٹا بحران کے حوالے سے خبر دیتے ہیں آپ کو۔ جنوبی پنجاب میں آٹا بحران بدستور جاری۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں آٹے کا سنگین بحران۔ دن بھر لائنوں میں لگنے کے بعد شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ رحیم یار خان میں آٹا سیل پوائنٹ پر جھگڑا، شہری آٹے کے حصول کے لیے گتھم گتھا۔ خوشاب میں مرد خواتین کے آٹے کے لیے تل کلامی اور دھکم پیل، خاتون سے آٹا چھیننے پر مرد کے جوتوں سے پٹائی کر ڈالی۔ ہارون آباد میں بھی انتظامیہ آٹے کی فراہمی میں ناکام۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے سیل پوائنٹ پر بدنظمی کا نوٹس لے لیا، اجلاس کی صدارت کی اور سیل پوائنٹ پر انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کا اس موقع پر کہنا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ مہنگائی بہت تیز ہے، اس لیے کیا کریں، غریب آدمی ہیں، سب پریشان ہیں، تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ آٹا بھی ملے اور سستا بھی ہو، تو غریب کے لیے تھوڑی مشکل کا سامنا جو ہے وہ کم ہو جائے۔ سر ہم صبح سے جاتے ہیں اور پوری دن لائن میں لگے رہتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، غریب کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹا سستا کیا جائے اور ساری مہنگائی کم کی جائے۔ بہت مہنگائی اور بہت مشکل سے گزارا ہو رہا، بہت کھانا مشکل ہوا پڑا ہے آٹا۔ گھنٹہ ہو گیا، اب مزدور آدمی مزدوری کرے یا آٹا لائن میں کھڑا ہو کے لے؟ اگر آٹا ہمیں سستا ملے تو ہم کیوں لائن میں کھڑے ہو کے لیں؟ اگر لائن میں بھی کھڑ کے آٹا نہ ملے تو پھر کیا کریں ہم؟ جنوبی پنجاب میں ڈیزل اور پیٹرول کا بحران سر اٹھانے لگا۔ ہارون آباد، دنیا پور، علی پور اور حاصل پور میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت بند۔ پمپ مالکان کی طرف سے سپلائی نہ آنا بحران کی وجہ قرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی افواہیں۔ دنیا پور میں متعدد پیٹرول پمپ پر سیل بند۔ ہارون آباد شہر اور گرد و نواح میں پیٹرول کی مصنوعی بحران سے عوام پریشان۔ کیرور پکا میں اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف پیٹرول پمپس پر چھاپا، جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ملتان سے خبر دیں گے آپ کو۔ صوبہ بھر میں 564 وکلاء جعلی قرار۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بننے والی کمیٹی نے 900 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے۔ لندن اور امریکہ کی ڈگریاں جمع کرانے والے 42 وکلاء بھی بوگس نکلے۔ پریکٹس کرنے والے جعلی وکلاء ہزاروں مقدمات لڑ چکے، کئی باز کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے۔ کئی ممبران کے ریکارڈ میں اسناد اور شناختی کارڈ تک موجود نہیں۔ جسٹس مسعود عابد نقوی کی سربراہی میں انولمنٹ کمیٹی نے فیصلہ سنایا، جعلی ڈگریوں والے وکلاء کے نام بار اور کچہریوں میں چسپاں کرنے کی ہدایات۔ ملتان سے 12، بہاول نگر سے 8، راجن پور اور صادق آباد سے 6 جعلی وکیل ثابت، بہاولپور سے 5، احمد پور چرکیہ، کوٹ ادو اور جہانیہ سے 4 جعلی وکیل شامل۔ رحیمیہ خان، شجاع آباد، بھکر اور خانپور سے 3 جعلی وکیل ثابت۔ تونسر شریف، میلسی اور ڈی جی خان سے 2 جعلی وکیل ثابت۔ خانیواد، مظفر گڑھ، جام پور، دنیا پور، لیا سے 1 جعلی وکیل ثابت۔ علی پور، حاصل پور اور لیاقت پور سے بھی 1 جعلی وکیل ثابت۔ بہاول نگر سے خبر دیں گے آپ کو۔ لیڈی ڈاکٹر کا خاتون کا غلط آپریشن کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سول عدالت نے غفلت ثابت ہونے پر لیڈی ڈاکٹر کو 84 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت کا 7 روز کے اندر اندر جرمانے کی رقم ادا کرنے کا حکم۔ مہلت کے دوران جرمانہ ادا نہ کرنے پر لیڈی ڈاکٹر کو گرفتار کیا جائے، عدالت کا حکم۔ سینئر سول جج عامر منظور نے فیصلہ سنایا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور۔ ملتان کے رکشہ ڈرائیور سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کا چنگی نمبر 9 پر 3 گھنٹے احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اے سی صدر نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کرکے احتجاج ختم کروایا اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ شکیل سلطان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ شہر ملتان میں خود ساختہ مہنگائی نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ایل پی جی مقررہ نرخ 204 کی بجائے 300 روپے سے زائد ریٹ پر فروخت ہونے لگی، جس پر امن پنجاب رکشہ ڈرائیور یونین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 3 گھنٹے تک چنگی نمبر 9 بلاک رہی۔
जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। गवर्नमेंट ने रेट किया है इसका 204 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर किया है। हम इस पर तस्लीम करते हैं, हम 204 में खरीदने के पाबंद हैं। तो जब ये माफिया ने पहले जनाब 220 कर दिया, 230 कर दिया, 240 कर दिया, अब 200, 320 और 40 तक जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने शाम को 500 रुपए फी किलो इसका रेट कर देना है। हम भाई गरीब आदमी ठेके की गाड़ियां, गैस पूरी करें, घर का खर्चा चलाएं, गैस है, बिजली है, कहाँ तक? गरीब आदमी को तो वैसे इन्होंने मरना जीना छोड़ दिया। गरीब आदमी तो मर गया, पिस गया, कोई पूछने वाला कोई नहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि मुंह जोर महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। इतनी महंगी गैस खरीदने की सकत नहीं है। जबकि एसी सदर नासिर डोगर ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए और कीमतों को कम कराने की यकीन दहानी भी करवाई। गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर जो है उससे महंगी हम नहीं बेचने देंगे किसी भी सूरत। इसके लिए मैं सिविल डिफेंस ऑफिसर को भी मैंने कह दिया है। कल हमने रिक्शा मालकान को एलपीजी एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको बुलाया है, तो इंशाल्लाह कल ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा और इन फ्यूचर भी इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए डीसी साहब से एक कमेटी बनवाई जाएगी जिसमें रिक्शा मालकान भी होंगे और गाहे बगाही हम अपना फीडबैक भी देते रहेंगे। इंतजामिया ने मसाइल के हल के लिए 1 दिन की मोहलत मांग ली, ताहम 3 घंटे के एहतजाज के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कैमरामैन नशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल। अब तक मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से पावरलूम इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार। पावरलूम मुलाजिमीन इंडस्ट्री बंद होने पर सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं सईद ज़ोहैब बुखारी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब। मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से पावरलूम इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। पावरलूम मुलाजिमीन इंडस्ट्री बंद होने पर सरापा एहतजाज है। हमें तो ना मजदूरी मिल रही है, ना काम चल रहे हैं, डूमें बंद पड़ी हैं, काम है नहीं है, क्या करें? हम तो इतने परेशान हैं कि खाने पीने से भी बेहतर हो गया, हमारा मसला खराब हो गया सारा। मुलाजमीन का कहना था कि काफी अरसे से इंडस्ट्री बंद पड़ी है, घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, हुक्मरान सिर्फ अपनी सीट बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि 8 रुपये बिजली महंगी हो जाएगी। बताएं, हमसे ये बिल नहीं पे हो रहे तो हम आगे बिल कैसे अदा करेंगे? ये आप खुद ही जान सकते हैं। हम तो इनसे यही कहेंगे कि यार आपस की जंग छोड़ो और मुल्क के बारे में कुछ सोचो, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। पावरलूम मुलाजमीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि अगर इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम न किए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ सैयद ज़ोहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। बेरहम महंगाई के थम न सके वार। आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना बनाना हो गया इंतहाई दुश्वार। क्या गरीब, क्या मतवस्त तबका, हर कोई महंगाई से परेशान। मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। आए रोज़ ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। घर में 2 वक्त का खाना बनता कितने का है, ये जानने के लिए देखते हैं सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में। मौजूदा मौशी हालात के पेश नज़र एक दरमियाने घर का खाना पीना मुश्किल हो गया। बज़ाहिर खाते पीते घराने भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश शहरियों के लिए ये एक बड़ी जंग है जो इन्हें हर रोज़ लड़ना पड़ती है। जबकि दीगर घरेलू ख़वातीन की तरह शाहीन और सुल्ताना को भी किचन का बजट संभालने में परेशानी का सामना है। 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वालों के घर में 2 नहीं बल्कि सिर्फ 1 वक्त का खाना भी बमुश्किल बनता है। हांडी पक जाती है कम से कम, अगर हम गोश्त के बगैर भी बनाए ना तो कम से कम 800-900 रुपये लग ही जाते हैं। वो ऐसे कि प्याज 200 रुपये किलो है, लहसुन वो भी 200-250 रुपये है और टमाटर जो है वो 60 रुपये किलो है। इसी तरह मतलब गोश्त लोग यहाँ बेच रहे हैं लोग, इतनी महंगाई नहीं जो खुद की हुई लोगों ने। खवातीन का कहना था कि गोश्त तो दूर की बात, आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां और मसाला जात खरीदने में ही जेब खाली हो जाती है। अदरक लहसुन 450 रुपए, कुकिंग ऑयल 550, मटन 1800 रुपए और चिकन 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ऐसे में 8 से 9 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली के लिए गोश्त पकाने का खर्चा 3000 रुपए तक आता है। जहाँ पर 8 बंदे खाने वाले हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर टमाटर, अदरक, लहसुन लेने जाएंगी तो आपके 1200-1300 रुपए की तो ये चीज़ें आ जाएंगी। बाकी आलू देख लें 200 रुपए किलो हैं तो आलू भी बीच में डालेंगे, तो एक नॉर्मल हांडी बनाने में 1200-1300 रुपए कहीं नहीं गए हैं। खवातीन ने बताया कि जीने के लिए खाना पीना तो छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से कम जरूर हो गया है। गोश्त महीने में एक बार ही पकाती हैं, क्योंकि जितने कम पैसों में गोश्त खरीदती हैं उस रकम में तो 3 दिन का खाना तैयार हो सकता है। महंगाई के इस तूफान ने जहां हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं रोजाना की बुनियाद पर घर में हांडी पकाना और खाना खाना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान।
सुहेरा तारी की रिपोर्ट आपने देखी और अब बात करते हैं मुल्तान कचहरी चौक पर नाजायज़ पार्किंग एरिया होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। चौक पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्तान कचहरी चौक पर नाजायज पार्किंग एरिया शहरियों की सर का दर्द बन गया। पार्किंग माफिया आवाम को लूटने में सरगर्म। शहर की आम शराह पर घंटों ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। इधर साइड पे पार्किंग बना दें। ये देखो ट्रैफिक आप देख रहे हो क्या हाल है। यहाँ पर वकला हजरात की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, जबकि अंदर ठेकेदारों को स्टैंड दिए हुए हैं किराए पे। शहरियों का कहना था कि एम्बुलेंस घंटों ट्रैफिक जैम में फंसी रहती है। ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है। दूर से आए साइलिन को पार्किंग माफिया लूट रहा है। काफ़ी अरसे से एक दरीना मसला चला आ रहा है। यही ट्रैफिक जाम का ये एक मेन चौक है कचहरी का मुल्तान का। यहाँ सुबह से इतना रश होता है, वकला हजरात की गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, जिसके एम्बुलेंसेस को अगर अचानक इमरजेंसी किसी पेशेंट को मुंतकिल अस्पताल करना हो तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़े। शहरियों ने इंतजामिया से इस मामले पर जल्द नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अब्बास, मुल्तान। मुल्तान जिला कचहरी में स्टाम्प फरोशों को मसाइल का सामना। स्टाम्प फरोश कहते हैं कि जिला कचहरी में स्टाम्प मार्केट आने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से साइलिन स्टाम्प खरीदने के अंदर नहीं आते। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्तान जिला कचहरी में स्टाम्प फरोशों के मसाइल में इजाफा होने लगा। सहूलियात के फुकदान पर स्टाम्प फरोश परेशान हैं। इंतजामिया से मसाइल हल करने की दुहाइयां देने लगे। तकरीबन 1.5 साल से ये बंद है। तो पहले यहाँ पे सिक्योरिटी भी बैठी होती थी, दरवाज़ा खुला होता था, तो आमदोरफ्त आवाम की होती थी। साइलिन परेशान नहीं होते थे। जो भी हमारे पास आते थे स्टाम्प लेने के लिए, डोमिसाइल रजिस्ट्री का काम करवाने के लिए, इस गेट से ही आते थे। स्टाम्प फरोशों का कहना था कि जिला कचहरी में स्टाम्प मार्केट में आने वाले दरवाजे को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से साइलिन स्टाम्प खरीदने अंदर नहीं आते। बाहर रोड पर स्टाम्प फरोश बैठे हैं, इन्हें हटाया जाए ताकि साइलिन स्टाम्प मार्केट में आकर रजिस्टर्ड स्टाम्प फरोशों से स्टाम्प हासिल कर सकें। जितने भी टाउट माफिया बैठा है, एक तो गेट बंद है, एक ये टाउट माफिया बैठा है, और ये 2 नंबर काम हो रहे हैं इधर सारे। कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई फट्टे लगाए बैठे हैं इनको वाली वारस नहीं है ना इनको कोई पूछता है। स्टाम्प फरोशन ने मुतालबा किया कि इंतजामिया स्टाम्प मार्केट आने वाला दरवाजा खोले ताकि साइलिन की रसाई स्टाम्प मार्केट तक आसान हो सके। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अब्बास, मुल्तान। सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के दावे धरे रह गए। मियांवाली के DHQ ट्रामा सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बेड कम पड़ गए, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया ने बेड्स बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। DHQ ट्रामा सेंटर मियांवाली में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि MS डॉक्टर अहमद खान ने बताया कि ट्रामा सेंटर में मजीद 10 बेड का इजाफा किया जा रहा है। आबादी बढ़ने के साथ ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग कम पड़ गई है। हम यहाँ पे इस इमरजेंसी में 10 बेडों की एक्सटेंशन कर रहे हैं, कम खर्चे में, बहुत थोड़े खर्चों में हमने एक्सटेंशन करनी है 10 बिस्तरों की, जो कि एक ही जगह पे बन जाएगी। और उसकी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हमने इंफॉर्मेशन भी ले ली है और उनसे एक रिपोर्ट भी बनवा ली है कि ये फिजिबल है, बन भी सकती है। MS डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि इस सिलसिले में महकमा बिल्डिंग से मीटिंग हो चुकी है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इजाफी बेड्स के हवाले से काम जल्द शुरू हो जाएगा। हमने विजिट किया है, यहाँ पे इमरजेंसी में एक स्टोर भी है, वहाँ पे इमरजेंसी की सारी अद्वियात मौजूद हैं। किसी मरीज़ को बाहर से कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, यहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल है। हाँ, बाकी बेड्स कम हैं, उस पे हमारी कोशिश है कि बेहतर सहूलियात दें। MS डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि निहायत कम बजट में काम मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई। अली चौक अरसे से टूट फूट का शिकार, जा बजा गड़े हादसा का सबब बनने लगे। खस्ता हाल रोड से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, उड़ती धूल मट्टी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर मुल्तान की खूबसूरती बरकरार रखने के बुलंदो बांग दावे हवा हो गए। इंतजामिया की नाअहली के बायस अरसे से अली चौक की हालत इंतहाई खराब है। जगह जगह गड़े हादसा का बायस बनने लगे। शहरियों का कहना था कि खस्ता हाल रोड से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर है। 2 साल हो गए आज तक ये रोड टूटा पड़ा, बनाने वाला कोई नहीं आता।
गड्ढे पड़े हुए हैं, कूड़ा और तक कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आ रहा यहाँ। थोड़ा इधर दरबार की जगह मेन गेट है दरबार का, उसके बावजूद भी मैं कि किसी इदारे को ख्याल नहीं कि भाई मेन गेट का हम ख्याल करें, ताकि ज़ायरीन आते हैं आके परेशान होते हैं, दूर दूर से लोग आके क्या कहेंगे कि मुल्तान की ये हालत है। दुकानदारों का कहना था कि रोड खराब होने के बायस यहाँ से कोई राहगीर नहीं गुजरता। वो अपनी मदद आप के तहत सफाई और पानी का छिड़काव करते हैं। रात को इस रोड के एक्सीडेंट की वजह से और दूसरा यहाँ रोड खराब होने की वजह से अक्सर डकैत खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल पर लूट मार करते हैं। लोगों को परेशानी है, लोग रोड की परेशानी से अंदर का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से गलियों में जाते हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अली चौक की जल्द तामीर और मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है। मुल्तान का अली चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। एक और बुलेटिन में आप बात करते हैं डीजी खान में डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साबिर हुसैन ने इजलास की सदारत की। इजलास में ड्रग रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ केसेस की समाअत हुई। CEO हेल्थ डॉक्टर अतहर सखानी, ड्रग कंट्रोलर और इंस्पेक्टर्स भी इजलास में शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डीजी खान का इजलास से खिताब में कहना था कि इंसानी जानवरों से खेलने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। जिला भर में गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और हस्पताल सील किए जाएं। जायद मियार, ममनुआ और स्मगलर शुदा अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अद्वियात की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड ना रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का मजीद कहना था कि फिजिशियन सैंपल फरोख्त करना कानून के खिलाफ है। मुतलका तालीम हासिल किए बगैर किसी को मेडिसिन फरोख्त करने की इजाज़त ना दी जाए। सर्दियों में मूंगफली समेत दीगर खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। शहरी मौसम सरमा में गरम भुनी हुई मूंगफली खरीदने के लिए स्टॉल्स पर मौजूद हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल इकबाल। ठंडे ठार मौसम में दीगर खुश्क मेवाजात की तरह मूंगफली की मांग में भी इजाफा। शहरी गर्मा गर्म मूंगफली खरीदने के लिए मूंगफली स्टॉल्स का रुख करते नजर आते हैं। स्टॉल्स मालकान कहते हैं कि मूंगफली शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। मूंगफली के फ़वाइद तो काफ़ी हैं, जिसके अंदर से शुगर पेशेंट के लिए मूंगफली फ़ायदेमंद है और सर्दी की सौगात है। जैसे सर्दी आती है मूंगफली की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पिछले सालों के अंदर मूंगफली के रेट अब ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। पिछले सालों में 5 साल तक मूंगफली 80 रुपये पाव बिकती रही है, अब 170 रुपये, 160 रुपये से 200 रुपये पाव तक बिक रही है मूंगफलियाँ। सर्दियों में गर्मा गर्म भुनी हुई मूंगफली लोग शौक से खाते हैं, मगर बढ़ती महंगाई के बायस शहरियों के लिए अब मूंगफली खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना था कि महंगाई में जेब सिर्फ मूंगफली खाने की इजाजत देती है। महंगाई बहुत हो गई है, ड्राई फ्रूट खाने का हमारा भी बहुत दिल करता है, मगर हमारी जेब इजाजत नहीं देती है। तो बस अब ड्राई फ्रूट तस्वीरों में अच्छे लगते हैं, तो बस यही है कि हम थोड़े बहुत ले आते हैं मूंगफली रोजाना और खूब मजे लेके खाते हैं। मूंगफली खुश्क मेवाजात में एक ऐसा मेवा है जिसे सर्दियों के मौसम की महफिलों की जान समझा जाता है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। कराची से मारगिला जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन बहावलपुर पहुंच गई। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे हमाद हसन मिर्जा और सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स जुल्फिकार अली मान ने इस्तकबाल किया। चेंबर के वफ्द ने बिजनेस कम्युनिटी को सहूलियात फराहमी बारे डीएस रेलवे को तजावीज़ भी पेश की। तफसीलात जानते हैं रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली पहली ट्रेन आज बहावलपुर पहुंची। ग्रीन लाइन ट्रेन की आमद पर डीएस रेलवे हमाद हसन मिर्जा की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर के वफ्द को खसूसी दावत दी गई थी। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुल्फिकार अली मान का कहना था कि ग्रीन लाइन ट्रेन शानदार इजाफा है, खित्ते के लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर होंगी। बहावलपुर के लिए अच्छा इंसेंटिव है कि ये इसका स्टाफ यहाँ दिया गया है और वफाकी वज़ीर रेलवे और तारिक बशीर चीमा साहब की काबिशों से बहाल हुआ है और हम इंशाल्लाह उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और डीएस रेलवे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे ये ऐसे ही मेंटेन रहे ट्रेन जैसे ये चल रही है, अल्लाह करे, और पब्लिक से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो ट्रेन को मेंटेन तरीके से रखे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने पार्लर कार का मुआयना भी किया। डीएस रेलवे हमाद हसन मिर्जा का कहना था कि ग्रीन लाइन ट्रेन की एयर कंडीशन क्लास की बुकिंग ऑनलाइन है। बहावलपुर को इकॉनमी क्लास में 12 बर्थ सीट्स का कोटा दिया गया है। हम इसको वॉच कर रहे हैं, इसकी मूवमेंट्स वॉच की जा रही हैं कि इसको मुसाफिरों को जो टाइम हमने रखा हुआ है उस पर पहुँचाया जाए। उसके साथ साथ जो उसके अंदर बॉटल नेक्स हैं, इरिटेंट्स हैं, वो रिमूव किए जाएं। और मैं बहावलपुर के अवाम को और आज इस वक्त
28 तारीख को खुशामदीद कहता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि इधर इकॉनमी क्लास में 12 बर्थ्स की सीट्स का कोटा भी रखा गया है। इसके अंदर वफ्द में सेक्रेटरी जनरल जिम खाना क्लब बहावलपुर आजाज नाजिम, अहमद बिलाल, सैयद अबीर भी शामिल थे। वफ्द ने बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस बहाल करने, कैरोगरम एक्सप्रेस में कोटा बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ भी पेश की। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, बहावलपुर। मियांवाली में महकमा तालीम के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। CEO एजुकेशन आसिम काशिफ की काविशें रंग ले आईं। मियांवाली में 5 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स आइंदा चंद रोज तक महकमा तालीम के हवाले कर दिया जाएगा। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का तामीराती 2017 में शुरू हुआ था। ये तामीराती काम 1.5 साल में मुकम्मल होना था। रहीमिया खान में इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज़राअत की तरक्की में पेश इंस्टीट्यूट में महकमा ज़राअत की फील्ड असिस्टेंट्स की 4 हफ्तों की तरबियाती वर्कशॉप सजाई गई। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज़ अहमद ने जदीद एग्रीकल्चर इंतजामी अमूर अंजाम देने के लिए हवाले से आगाही लेक्चर दिए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीमिया खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 4 हफ्तों की तरबियती वर्कशॉप का इनकाद। जनूबी पंजाब भर से फील्ड असिस्टेंट्स ने तरबियती वर्कशॉप में हिस्सा लिया। पहले हफ्ते के आखिरी रोज डायरेक्टर इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद ने खसूसी आगाही लेक्चर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग और सीनियर इंस्ट्रक्टर जमील रहमान ने भी आगाही लेक्चर दिए। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि हुकूमत पंजाब का विजन है कि एग्रीकल्चर फील्ड में तरक्की करना है। इदारे में जनूबी पंजाब भर के फील्ड असिस्टेंट्स को गंदम, आमों के बागात, कपास और गन्ना समेत दीगर फसलों की बीमारियों के खात्मे और बेहतर फसल उगाने की मुकम्मल आगाही दी जा रही है। जदीद तकाज़ों की तरबियती वर्कशॉप फील्ड असिस्टेंट्स के लिए वक्त की अहम जरूरत है। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये हमारे फील्ड असिस्टेंट हैं जो 3 डिवीजन से हमारे पास आते हैं, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर। तो ये इनकी प्रमोशन रिलेटेड ट्रेनिंग है कि इनके अगले स्केल में तरक्की से पहले इनको 4 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये इनका पहला हफ्ता जा रहा है। तो इसके अंदर इनको एक तो क्रॉप जो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में रिफ़्रेश किया जाता है, और दूसरा जो हमारी मोटिवेशनल टेक्स्ट हैं उसके बारे में तो हम मुख्तलिफ जो स्पीकर्स हैं उनको मदऊ करते हैं। तरबियती वर्कशॉप में शरीक फील्ड असिस्टेंट ने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग किसानों व जिम्मेदारों को फसलों बारे मुकम्मल आगाही देने और दफातर के इंतजामी अमूर बेहतर तौर पर चलाने के काबिल बनाती हैं। हमें आगाही इसकी बहुत कम थी। अब हमने अपना नॉलेज जो है वो अपडेट कर रहे हैं। खासकर जो नई चीज़ हमें यहाँ से टेक्नोलॉजी मिल रही है वो जैतून की काश्त, वो हमें पहले नहीं इल्म था, अब हमें आगाही हुई है। हमारे महकमे से जो एक्सपर्ट है वो यहाँ आ रहे हैं और हमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्लाइड के ज़रिए हमें वो ट्रेनिंग देते हैं और माशाल्लाह हमारे अंदर वो एक बेहतरी लाना चाहते हैं ताकि हम जाकर फार्मर्स को जो आगाही देंगे यहाँ से जो कुछ हम सीख के जा रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, ताकि हम अपनी मुल्क की माशियत में उसका बेहतर, और हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद का मजीद कहना था कि तरबियती वर्कशॉप से फील्ड असिस्टेंट्स की पेशा वराना महारत में वाज़ेह निखार आएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमिया खान। लिया में जिक्रिया गर्ल्स स्कूल के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स गाला सजाया गया। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात ने मुख्तलिफ सकाफतों के रंग पेश करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। रिपोर्ट करें जाहिर सरफराज। तालिबात की सलाहियतों में निखार पैदा करने के लिए लिया के जिक्रिया गर्ल्स स्कूल में स्पोर्ट्स गाला सजाया गया। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात ने चारों सूबों की सकाफत के रंग पेश करके अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया। तालिबात के माबैन मुख्तलिफ हाउसेस के मुकाबले भी करवाए गए। तालिबात ने जिमनास्टिक के करतब पेश करके खूब दाद वसूल की। प्रिंसिपल स्कूल हुमैरा गुल का कहना था कि तालिबात की सलाहियतों को उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स गाला इंतहाई जरूरी है। सारा साल तो हम पढ़ाई में मसरूफ रह जाते हैं, तो हमें इतने मौके नहीं मिलते कि हम गेम्स को यहाँ पर सरंजाम दे सकें, और इसके साथ साथ हमारी गेम्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो गेम्स बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बुक्स के साथ साथ गेम्स का भी होना ज़रूरी है ताकि बच्चे एक्टिव रहें। तालिबात का कहना था कि स्पोर्ट्स गाला से सीखने का बहुत मौका मिलता है। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है सर गुल के मैम हुमैरा की, इन्होंने हमारे लिए इतना अरेंज किया और हम आइंदा भी करेंगे, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी होता है, इम्प्रूव होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया। बाज़ औक़ात बच्चे पढ़ के थक जाते हैं, इसलिए ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर गुलकार मैम हुमैरा का कि वो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ मुहैया कर रहे हैं।
तालबात का मानना था कि स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लेकर बहुत एंजॉय किया। इस तरह के प्रोग्राम जिंदगी में कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।